Hello everyone, welcome back to my channel. This is Meenakshi and a very warm welcome on my channel. And you all are watching my videos on my YouTube channel Let's Study. And thanks a lot. Thank you very much guys that you all are watching, sharing and liking my videos. Thanks for your support and motivation, and keep liking, keep sharing and keep watching the videos, and also keep subscribing the channel. And thanks a lot. Thank you very much. And today we are going to talk about clauses. What is the meaning of the clauses and what is the importance of the clauses? And there are different things we are going to discuss today. So shall we start? Clauses with let's study. So meaning of clauses is, clauses means khand, section, part, वाक्यांश, etc. Right? So clauses को you can call with these names. Meaning of clauses: clauses are small part of a larger sentence. A small part of a larger sentence having only one subject and one one verb. Having one subject and one verb. So having one subject and one verb, it is known as clauses. We can write this. Clause is subject plus verb. Right? So why do we study clauses? Because it enhances and it improves the writing and speaking skill. It improves writing and speaking skill. It is very important nowadays to speak in English or to write in English, है ना? So it improves writing and speaking skill. And in English grammar, it is very important. It is very important part. No, clauses is a very important part. So clauses is this. Now uh, before coming on clause, we need to know what is a sentence. So sentence, to be a sentence, to be a sentence, we need what? We need subject plus verb plus object. We need like this, means, or we can say subject plus predicate. Subject plus predicate. थिंग इज दिस कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आप कंबाइंडली क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कम आपका प्रेडिकेट. आई एम राइटिंग हियर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट. ठीक है. तो टू बी अ सेंटेंस आपको ये चाहिए. तो सेंटेंस कैसे? आई एम राइटिंग एन essay. It is a complete sentence. It has meaning, it giving sense also. So I am writing subject, this is your subject, this is your verb, this is your helping verb, and this is your verb, and this is your object. So it is making the making a sentence. And you can also say predicate part. If we do like this, subject, I is your subject, and rest part is your, from here to here is your predicate part. बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि आई एम राइटिंग एन ऐसे, आई इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज योर प्रेडिकेट, एंड आई एम राइटिंग एन ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो इट मेक सेंस, इट मेक्स अ सेंटेंस. ठीक है. नाउ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज योर प्रेडिकेट पार्ट. तो दिस इज योर सेंटेंस. कैसे आप सेंटेंस बनाते हैं? नाउ वी कम टू क्लॉज. तो क्लॉज क्या है? क्लॉज इज ए बिग पार्ट. क्लॉज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस. तो क्लॉज क्या है? सपोज कंसिडर इट अ सेंटेंस. इट इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, एंड इट शुड हैव subject and verb. There should be subject and verb. So it is a big sentence, it is a large sentence, and it is a section of a section with subject and verb. It is your clause. Easy. मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, बट उस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो पार्ट होगा, दैट विल बी योर क्लॉज.
subject and verb should be there, it makes your clause and rest will be your sentence, है ना। और सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए था, पूरा एक सेंटेंस, आई एम राइटिंग एन एसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लग चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। बट क्लॉज के लिए यू नीड जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एंड इट मेक योर क्लॉज, ठीक है। तो from where clause comes from the sentence, like every sentence is a clause, but every clause is not a sentence। अब इसे भी हम प्रूव करते हैं कैसे। एवरी सेंटेंस, ये एवरी सेंटेंस है। आप एनी सेंटेंस यू कैन टेक इन द वर्ल्ड एंड दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले लें, तो एवरी सेंटेंस इज ए क्लॉज, उसमें एक क्लॉज होगा ही होगा, सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा ही मिलेगा, यू विल गेट द सब्जेक्ट एंड वर्ब। बट एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस। लाइक जैसे एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस, आई विल राइट हियर लाइक दैट, राम ईट्स, राम ईट्स, तो इट इज subject and it is your verb, equal clause, but it is not a sentence. Clause, I will write here, clause is never a sentence. ठीक है, clause is never a sentence। clause को आप कभी भी एक sentence you will never say, ठीक है, आप कभी नहीं बोल सकते। तो ये हुआ आपका सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को नहीं जानेंगे तब तक आप क्लॉज को नहीं समझ सकते। तो सेंटेंस के अंदर ही क्या होता है, क्लॉज होता है, और क्लॉज क्या है, आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब वाला पार्ट। तो सपोज ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ हम लिख रहे हैं एक आई एम राइटिंग एन एसे, है ना। तो इस सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट हो गया ना, विथ सब्जेक्ट एंड योर वर्ब, दिस इज योर क्लॉज। तो आई और एम जो है आपका क्या बन गया, ये आपका क्लॉज है, राइट। नाउ वी कम टू अ क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अभी हमने क्लॉज पढ़ लिया ना कि क्लॉज, नाउ वी विल कम टू प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे समझोगे कि कैसे आपको सेंटेंस से निकालना है, क्योंकि सेंटेंस जो जो क्लॉजेस होती है ना, ये एक बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने में आपको हेल्प करती है। बड़े बड़े सेंटेंस आप लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप लिखते हो, उनको लिखने में हेल्प होती है। जब तक आप क्लॉजेस को नहीं समझेंगे, आप यू विल नॉट बी एबल टू राइट द मतलब पैराग्राफ्स, एसेज, इस तरह की चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए आपको अपना पैराग्राफ और एसे वटएवर जो भी है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है इसीलिए क्लॉज पढ़ने की। मैंने ऑलरेडी ये बताया कि क्लॉज क्यों हम पढ़ते हैं, इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल के लिए, और क्लॉज क्या है और हमारा सेंटेंस क्या है। डन, यहाँ तक हमारा। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल टू नो व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो लेट्स मूव ऑन द अनदर एग्जाम्पल। Now, I went there and met her and when she was dancing. I met there and met her when she was dancing. तो it is a complete sentence, एक big sentence है। अब इसमें हमें clauses पता करनी होंगी, इसके हेल्प से हम clauses, principal clause, coordinate clauses को हम confirm करेंगे। तो दुनिया में जितनी भी हैं, all the sentences have a principal clause. Every sentence, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं every sentence starts with the principal clause, principal और main clause। एवरी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपका मेन क्लॉज उसमें होगा ही होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा ही होगा, तभी बाकी क्लॉजेस बन पाएंगे उसमें। और क्लॉज मीन्स आपको हमने बताया सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ है हमारा। ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब, जिससे आपको ईजी हो जाए, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, एंड हेयर इज ऑल्सो सब्जेक्ट एंड ये वर्ब। तो ये यहाँ पर तीन आपको क्या मिल गए हैं, आपको क्लॉजेस मिलेंगे। आप कैसे हमें ढूंढना है, जब हम ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी से,
principal clause is PC, coordinate clause is CC and subordinate clause is SC. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप ऐसे बोलेंगे. नाउ आई वेंट देयर, तो इट इज योर प्रिंसिपल क्लॉज PC. मेट हर, इट इज योर कोऑर्डिनेट क्लॉज CC एंड शी was dancing is your subordinate clause. तो 3 क्लॉजेज हमको मिल गए, एक बड़े सेंटेंस में हमें मिल सकती है. मीन्स एवरी सेंटेंस विल हैव अ प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज से ही बनेगा. और प्रिंसिपल क्लॉज आपकी जो होती है वो सिंपल सेंटेंस भी उसे हम बोलते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज आपका सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, उसमें कोई WH फैमिली नहीं होती, किसी भी तरीके से आप उसे करेक्ट नहीं करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कैसे. तो आई वेंट देयर एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको अगर आप यहाँ फिनिश कर दे तो पूरा सेंटेंस है. ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी है. ठीक है, और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है. इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है. क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग, इंडिपेंडेंट का मीनिंग, क्लॉज का मीनिंग क्या है वो हम लिखते हैं. पहले हम देख लेते हैं यहाँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स सेंस on its own as a sentence. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. वो एक मीनिंग देती है अपने आप में ही. ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, हैविंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता ही है प्लस में, इसका मीनिंग भी है. इट इज गिविंग मीनिंग ऑल्सो. एंड इंडिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट है एंड दिस इज योर डिपेंडेंट. डिपेंडेंट मीन्स निर्भर. जब हम किसी पे निर्भर होते हैं तो निर्भर हो जाना. तो डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट मेक सेंस and does not make sense on its own as a sentence. It does not give the meaning, but इसमें subject और verb होता है. It has the subject and verb also. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में अपना एक मीनिंग दे रही है, उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और प्रिंसिपल क्लॉज भी है और साथ में ये एक सिंपल सेंटेंस भी है. सिंपल सेंटेंस. तो आपको यहाँ 3 चीजें पता चल गई. सिंपल सेंटेंस भी है ये. ठीक है, हमेशा दुनिया का हर एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ शुरू होगा. तो हर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होता है. विद वो प्रिंसिपल क्लॉज होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और सिंपल सेंटेंस भी हम उसे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंजंक्शन या कुछ भी आप जोड़ते नहीं हो सिंपल सेंटेंस के अंदर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर. नाउ मेट हर, अब चूंकि यहाँ पर आपने एंड को जोड़ा है तो ये हमारा बन गया है क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज. क्योंकि हमने अब यहाँ पर हमारे कुछ भी और भी कंजंक्शंस हो सकते हैं. कंजंक्शन जैसे हमारा कंजंक्शन कौन कौन से हमारे, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, बिकॉज, अनलेस, until, yet, as well as. तो these are your conjunction. तो जब आप किसी सेंटेंस को यानी किसी प्रिंसिपल क्लॉज में दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शंस का यूज करेंगे. एनी कंजंक्शन यू विल यूज, एनी कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज में
प्रिंसिपल क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में यू कैन से, आप जब किसी भी सेंटेंस को जोड़ना चाहेंगे, वो जोड़ना पड़ता है, तो आप एनी कंजंक्शन यू विल यूज, तो वो क्या बन जाता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जब आपका WH फैमिली जुड़ती है, ये WH फैमिली में क्या, अब WH फैमिली यानी कि सारे जितने भी है WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं, लाइक वाई, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, विच, एटसेट्रा। तो दीज आर हैविंग WH 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 WH, है ना, एवरीथिंग है। तो जब WH वर्ड से आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी WH फैमिली जुड़ेगी, WH फैमिली वाले जो भी वर्ड आपको जोड़ोगे वहाँ पर, तो वो आपका क्या बना देगा, WH फैमिली वाला वर्ड कोई भी आप जोड़ेंगे किसी सेंटेंस में, तो वो क्या बना देगा उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर है। प्रिंसिपल क्लॉज, हर एक सेंटेंस दुनिया का प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं जुड़ा होता है, कोई WH फैमिली नहीं जुड़ी होती है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन जब उसमें आप किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे, ये वाली कंजंक्शन एंड दीज आर द कंजंक्शन, ये कोई भी कंजंक्शन यहाँ जुड़ सकती है, मतलब सेंटेंस कैन बी डिफर, सेंटेंस डिफरेंट होगा, तो आप इसको जब ऐड करेंगे देन इट बिकम आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, और ये आपका बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब आप एंड के साथ जोड़ेंगे, आप कंजंक्शन वर्ड को जोड़ते हुए किस सेंटेंस को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड व्हेन यू विल ऐड WH फैमिली, व्हेन यू विल ऐड अ सेंटेंस विद WH फैमिली, यू विल गेट सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दीज आर द 3 क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये सब क्या है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो दोनों है सेंटेंसेस हैं हमारे मैटर, ये है डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है और ये भी आपका डिपेंडेंट है, दोनों सेंटेंसेस आपके डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है, इसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि जब तक ये सेंटेंस नहीं होगा आप एंड मैटर किससे मिलेंगे, आई वेंट देयर एंड मैटर, तो ये मैट तो तभी हुआ ना, इसकी मीटिंग तो तभी हुई ना जब ये वहां पर गया, और जब मीटिंग हुई तो उसने देखा, जब वो उसको मिला तो उसने देखा कि वो डांस कर रही थी, तो डांस करते हुए कब देखा, जब वो उससे मिला, है ना। जब आप पहले गए वहां पर, जब कोई जाएगा कोई सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो गया वहां पर, फिर उससे मिला, जब तक वो जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे, और जब मिलेगा नहीं तो डांस कैसे देखेगा, है ना। तो डांस देखने के लिए उसको मिलना पड़ेगा, और मिलने के लिए उसको वहां जाना पड़ेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसीलिए है, और डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट क्लॉज इस पर हमारी, इसके साथ इनका रिलेशन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। समझ गए ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई भी कंजंक्शंस का किसी भी तरह से हमने कुछ ऐड नहीं किया, ये सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है अपने आप में, है ना। प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस इस पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि जब तक ये आई वेंट देयर कोई वहाँ जाएगा नहीं, जब वो जाएगा नहीं तो वो मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो डांस कैसे देखेगा, तो उसको डांस देखने के लिए उससे मिलना पड़ेगा, और मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों सेंटेंसेस इस पर डिपेंड है, दोनों सेंटेंस, इसीलिए हम इन दोनों को डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नाउ और एवरी सेंटेंस, हर एक सेंटेंस स्टार्ट होगा प्रिंसिपल और मेन क्लॉज से। कंजंक्शंस हमारी हैं, और WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले जो हैं हमारे, वो बनते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका जो कंजंक्शंस के साथ जुड़ेंगे वहां पर बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जब आप इन चीज़ों को जोड़ेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, और जब आप WH फैमिली जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। you must work hard, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पर आपका कोई भी
कंजंक्शंस या WH फैमिली नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप ये समझ लेंगे कि ये एक तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज कह सकते हैं, और मेन क्लॉज क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, दोनों चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब है, इसीलिए ये क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन ऐड नहीं है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ और ये इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र है, इसमें अपना एक मीनिंग है, मीनिंग दे रहा है, यू मस्ट वर्क हार्ड। नाउ एक अनदर सेंटेंस है, इफ you want to succeed in your life, if you want to succeed in your life, तो ये एक अनदर सेंटेंस है, यहाँ पर कंजंक्शन ऐड कर दिया हमने, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये हमारी जब कंजंक्शन ऐड होगा, इफ भी एक कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन ऐड हुआ तो ये आपकी कौन सी क्लॉज बन गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया क्योंकि यहाँ पर आपको ये कंजंक्शन वर्ड आ गया, ये हमारा कंजंक्शन है, और ये हमारा पूरा सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिया हुआ है, और ये इस क्योंकि कंजंक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई है, जैसे हमने पहले बताया। तो जब ये डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यदि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, लाइफ में सफल होना चाहते हो, तो इसका क्या मीनिंग है, कोई भी मीनिंग नहीं है। यदि तुम लाइफ में सफल होना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ मीनिंग तो हो, यहाँ पर इससे पहले कुछ मिसिंग है, जो मिसिंग चीज़ है वो हमें सोचना है क्या है ना। तो क्योंकि ये इफ़ यू वांट टू सक्सीड, भाई अपनी लाइफ में आप किसी को ऐसे ही बोल देंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उससे पहले भी तो उसको आप कुछ बोलेंगे ना। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, या आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या एग्ज़ाम में पास होना है तो और ज़्यादा लेबर अपना मेहनत लगानी पड़ेगी, ऐसे आप कुछ बोलेंगे। तो ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट है ना। यदि आप सफल होना चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोल। तो उसको कंप्लीट करने के लिए अगर आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इस इफ़ के साथ, तो यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, तो ये है आपका डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इसको किसी और सेंटेंस की हेल्प चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज को यानी निर्भर वाले क्लॉज को अपने आप को पूरा करने के लिए किसी सेंटेंस की हेल्प चाहिए, तभी ये पूरा होगा। तो यह सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो हम इसे ऐड कर देंगे, इफ़ यू, है ना, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, ऐसे ही बोला जाएगा। यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर है। नाउ ऑन द बेस ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो 4 हैं सबसे पहले। अब वो किस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले आपका सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल हम ऑलरेडी बता चुके, सिंपल यानी कि कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। पहले तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा और मेन क्लॉज जिसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल जो सेंटेंस होगा आपका, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नंबर 1, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके अंदर वो प्रिंसिपल और मेन क्लॉज भी होगा सबसे बात, और एक सिंपल सेंटेंस तो वो होना ही होना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जब वो एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया, ही इज गोइंग टू मार्केट। नाउ कंपाउंड सेंटेंस के लिए, इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ये मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलते हैं क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है, और प्रिंसिपल क्लॉज उसमें होती है, तभी वो सिंपल सेंटेंस है, विदाउट एनी कंजंक्शन और WH फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, और ये विद प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है, ठीक है। नाउ
अब हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा? जब आपके पास, अभी हमने बनाया था ना कंपाउंड सेंटेंस को, कि आपको उसमें के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जो कि हर एक सेंटेंस में होगी। दुनिया के सारे सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी ही मिलेगी। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आपको कंजंक्शन चाहिए, जो कि हमारी कंजंक्शन वर्ड्स हैं सारे, उसी से आप सेंटेंस में ऐड करें, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज तो होगी ही होगी। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको प्रिंसिपल क्लॉज में ही तो आप ऐड करेंगे ना। तो प्रिंसिपल सेंटेंस होगा यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसमें कंजंक्शन ऐड करेंगे, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, जो भी आपके साथ वो है। फिर उसके बाद आपका वो बन जाएगा कोऑर्डिनेट सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे बनेगा। कंपाउंड सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, फिर आप कंजंक्शन ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं ही इज, एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, ही इज पुअर, ये आपका बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब है। ही इज पुअर बट, कंजंक्शन ऐड कर दिया, ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये आपका कौन सा क्लॉज, कौन सी वो बन गया? कंपाउंड सेंटेंस है ये। बट को ऐड करने से, जब भी आप कंजंक्शंस वर्ड को ऐड करेंगे आपको कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। तो आपको कंपाउंड कंजंक्शन वर्ड को ऐड करेंगे, कंजंक्शंस को, कंजंक्शन वर्ड जितने भी कंजंक्शंस हैं ऐड करने पर, कंजंक्शंस ऐड करने पर आपको कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए व्हाट यू विल डू, वहां पर भी आपको प्रिंसिपल क्लॉज होगी ही होगी। उसके बाद हम प्रिंसिपल क्लॉज के बाद क्या लगाएंगे? हम WH फैमिली को लगाएंगे। WH फैमिली में जितने भी वर्ड, वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, व्हाट, वेयर, हु, व्हाट, जो भी है, ये सारे सेंटेंस जोड़ेंगे एंड देन आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो आप जैसे लिखेंगे, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे इस तरह से, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए WH फैमिली, तो राम वॉज रीडिंग, है ना। नाउ यू कैन चेक, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब है, ठीक है, राम वॉज, तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, यानी क्लॉज तो है ना। प्रिंसिपल क्लॉज क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी कंजंक्शन ऐड नहीं है और इसका अपना एक मीनिंग है। राम वॉज रीडिंग, बात खत्म, सिंपल सेंटेंस है, राम पढ़ा। लेकिन जब आप इसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए WH फैमिली ऐड करेंगे, देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए WH फैमिली ऐड होते ही WH फैमिली को ऐड करेंगे। नाउ राम वॉज रीडिंग वैन, तो WH फैमिली ऐड हो गई, वैन इट वॉज रेनिंग। टू ऐड अनदर सेंटेंस, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने ऐड वैन को यूज़ कर लिया, WH फैमिली यूज़ की। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब दूसरा सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब या कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब एक अनदर सेंटेंस को हम जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ, या आपके कंजंक्शंस होंगे या आपकी WH फैमिली होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है? WH फैमिली है। वैन इट वॉज रेनिंग, राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था, वैन इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं PC। ये आपका WH वर्ड है एंड दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये फिर से वही सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि हम WH फैमिली को ऐड कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। दो सेंटेंसेस को वैन की हेल्प से हम जोड़ रहे हैं। जब वैन को जोड़ेंगे, WH फैमिली को जोड़ेंगे, तो आपकी ये जो क्लॉज होती है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। और जब आप कंजंक्शंस के साथ जोड़ेंगे, ये कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे, तो वो आपका जो सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, फिर आपने कंजंक्शन ऐड किया, फिर आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया ये ऑनेस्ट जो है। ठीक है,
तो ऑनेस्ट है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें यहाँ पर उसका काम कर रहा है क्योंकि आपने कंजंक्शन को ऐड किया है, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, जो भी आपकी कंजंक्शंस है। और WH फैमिली को आप ऐड करेंगे तो फिर आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, राइट। नाउ द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। नाउ दिस इज द फोर्थ वन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम मिक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमको यहाँ चाहिए अपना प्रिंसिपल क्लॉज प्लस आपका कंजंक्शन प्लस आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस आपको WH फैमिली वाले वर्ड जो भी है, देन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इट विल मेक योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल। जैसे व्हेन, नॉट व्हेन, आई वेंट देयर एंड met her when she was dancing. I met there and met her when she was dancing. तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट वर्ब, आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एंड योर सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर 3 क्लॉजेज हैं। पहली क्लॉज आपकी यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड आपकी यहाँ पर है, एंड थर्ड वन इज योर हियर। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका कंजंक्शंस है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका WH फैमिली वाले वर्ड है जो जिसके साथ हम अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कब बनती है, जब आप WH फैमिली के साथ जोड़ते हैं। किसी 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए WH फैमिली यूज़ करते हैं, और जब आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस वर्ड को यूज़ करते हैं तो आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। क्योंकि इसके साथ तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। बट प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आप जब मैट हर को जोड़ेंगे तो आपको एंड लगाना होगा, और एंड, बट, और, नॉर, जो भी आपका कंजंक्शन है वो जब आप ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलता है। एंड जब आप व्हेन को ऐड करते हैं इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तीसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए, तो वो बन जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और WH के साथ आप उसको जोड़ते हो, राइट। तो किस तरह से, जब आप ये प्रिंसिपल क्लॉज सबके साथ है, एंड को जोड़ेंगे तो आपको मिले, कंजंक्शन एड को जोड़ेंगे तो यू विल गेट कोऑर्डिनेट क्लॉज, WH फैमिली को जोड़ेंगे तो यू विल गेट सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दीज आर द 3 क्लॉजेज, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, है ना। और दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स। अब ये एग्जांपल है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का। तो आई वेंट देयर, ये फर्स्ट है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। फिर से बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है, ये वाला और ये वाला, ये बोथ आर डिपेंडेंट, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। मेट देयर, आई वेंट देयर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों सेंटेंस इस पर डिपेंड है। जब तक ये नहीं होगा पार्ट, ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जब तक वो मिलने नहीं जाएगा तब तक जब तक वो वहाँ जाएगा नहीं तो मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो डांस नहीं देखेगा। तो डांस देखने के लिए उसको वहाँ डांस देखने के लिए मिलना ज़रूरी है, और मिलने के लिए उसको वहाँ जाना ज़रूरी है। तो इन दिस वे ये इस पर डिपेंड है। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल क्लॉज ये आ गई आपकी, फिर आपका कंजंक्शन वर्ड ये रहा, फिर आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई ये, देन आपका WH फैमिली, एंड देन योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉजेस, अबाउट क्लॉजेस। और इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, और क्या था हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ, राम एट एप्पल। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपका, और सिंपल सेंटेंस भी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज भी हम इसे बोलेंगे। थर्ड वन नंबर क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। ये है एक पूरा सेंटेंस है, इसमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस खत्म। उस राम ने एप्पल खाया। लेकिन अगर हम यहाँ एक
और सेंटेंस को लिखते हैं, बिकॉज ही वॉज हंग्री। तो जब बिकॉज ही वॉज हंग्री तो ये इनकम्प्लीट है ना, तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है एक तो, दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग है, डज नॉट हैव सेंस, उसमें सेंस भी नहीं है, कोई मीनिंग भी नहीं है। भाई क्यों भूखा था, क्यों भूखा था, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं, जब तक हम इसको इसके साथ ऐड नहीं करेंगे ये मीनिंग नहीं, क्योंकि वो भूखा था, ये है ना। तो हम क्योंकि वो भूखा था, यानी राम एट एप्पल, राम ने एप्पल खाया क्योंकि वो भूखा था, अब ये कंप्लीट हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमेशा इसके ऊपर डिपेंड रहेगी और इसको हम ऐड करेंगे अपने कंजंक्शन वर्ड से। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज यू आर एडिंग विद हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये हमेशा इस पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब में इसी तरह, ये कॉम्प्लेक्स का, तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, राइट। So that's all for today. Bye bye, have a nice day and take care, and we'll meet you in the next video. Bye bye and thank you.